हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्यू गेट क्लासेस एन इनिशिएटिव बाय टेक्यू फैकल्टी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 11 ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। In our last 10 lecture, till now we covered the introduction of differential equation, the motivation of a differential equation, order degree, linearity, non-linearity of a differential equation, formation of a differential equation, types of solution of a differential equation, types of problem of a differential equation. We also finish the solution of a first order and first degree differential equation, in which we learned the various method like variable separable method, homogeneous differential equation method, non-homogeneous differential equation method, exact differential equation, non-exact differential equation, linear equation and Bernoulli's differential equation. We have also seen, or we have also finished the higher order differential equation with constant coefficient, in which we learned the homogeneous differential equation with constant coefficient and non-homogeneous differential equation with constant coefficient. In our last video, we also covered the part of a Cauchy-Euler homogeneous differential equation. Now in this lecture, this is the last topic of our GATE syllabus, that is the variation of parameter. In that variation of parameter, basically this is a effective method to find the particular integral. So let us start our today lecture. So before going to start the variation of parameter, we should try to understand some terminology and some result. तो पहले हमें कुछ रिजल्ट और कुछ टर्मोलॉजी समझ लेना होगा when you try to solve the variation or when you try to solve some problem using variation of parameter. So first we'll try to understand the normalized differential equation. सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे that is called the normalized differential equation. तो इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम कंसीडर कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को. So consider a second order linear differential equation and we assume that a2x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a0x y is equal to function of x. यहाँ पर जो हमने माना है a0 and a1 and a2, these are the either constant coefficient or some variable coefficient. यानी ये जो हमारी a0 है, a1 है, a2 है, either ये function of x हो सकती है या फिर constant coefficient हो सकती है. And our right hand side, this will be our some function of x or it's some constant term. हमने ये भी माना यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में a2x not equal to 0. If a2x will equal to 0, then we cannot say that this will be our second order linear differential equation. यानी ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, this may be our variable differential equation or the differential equation with variable coefficient, या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं differential equation with constant coefficient. That will depend on our term like a0, a1 and a2. अगर इसमें से कोई भी एक टर्म अगर वेरिएबल है या वेरिएबल होगी, उस केस में हम बोल सकते हैं दैट विल बी आवर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. और इसमें से अगर सारे कोएफिशिएंट लाइक a0, a1 and a2 if all are constant, then in that case we can say that that will be our second order linear differential equation with constant coefficient. यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में जब भी हम लेंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट प्रॉब्लम और दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो सकती है और वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकती है. तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब भी हम नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इफ सम डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ इट इज अ नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. यानी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को माना है दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इन दैट केस this equation will be the normalized differential equation if the coefficient of d2y by dx2 if it is 1, then in that case we can say that that equation will be our normalized differential equation. तो हम इसे normalized differential equation के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं by dividing the expression by a2x. अगर हम इस इक्वेशन को a2x से डिवाइड करें, in that case we can write d2y by dx square plus a1x divided by a2x into dy by dx plus a0x divided by a2x into y is equal to f of x divided by a2x. यानी जो हमारी
इक्वेशन दी हुई थी जो हमने माना था सेकंड ऑर्डर, उसको हमने नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx, dy by dx का कोएफिशिएंट मिल रहा है a1x divided by a2x. So this may be some function of x or it can be some constant. So we are assuming that that thing that is a1 divided by a2 हमने माना एक new function that is our p of x. We are using some notation like p of x is equal to a1 by a2. That is the coefficient of dy by dx. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि y की जो हमारी कोएफिशिएंट है आफ्टर डिवीजन वी आर गेटिंग a नॉट बाई a2, हम इसे नोटेशन वाइज दे रहे हैं, दिस इज आवर q ऑफ x, हम इसे डिनोट कर रहे हैं q से, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ y वी डिनोट एज ए q ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस px dy बाई dx प्लस qxy, और हमने राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये भी क्या हो सकती है, आइदर फंक्शन ऑफ x सकती है या फिर ये कांस्टेंट टर्म हो सकती है, और इस fx बाई a2 को हमने माना r of x, that will be some function of x or it can be some constant term. So this equation will be our normalized differential equation. हम इसे नॉर्मलाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सेकेंड ऑर्डर का जो टर्म है, जो सेकेंड डेरिवेटिव है, उसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा, लाइक यहाँ पर हमने सेकेंड ऑर्डर का लिया था, हम इसे थर्ड ऑर्डर भी ले सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर भी ले सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो द मीनिंग ऑफ द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट whatever the order of the differential equation, the highest derivative in that differential equation, the coefficient should be 1. So that kind of a differential equation we call as a normalized differential. Okay, now we are going to understand another terminology that is called the Wronskian. अब हम Wronskian समझेंगे। ये जो Wronskian है, this is a very important when you try to check when the two solution or when any number of solutions are linearly independent or not. तो यहाँ पर हमने माना दो फंक्शन, हमने यहाँ पर फंक्शन कंसीडर किया है, if y1 and y2 be two real valued continuously differentiable function on some interval, the interval is I, हमने माना इंटरवल I, तो in that case the Wronskian of these two function, याद रहे ये दोनों फंक्शन, हमने यहाँ पर दो फंक्शन कंसीडर किया है और दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो इन दैट केस द Wronskian ऑफ दिस y1 एंड y2 वी कैन राइट एज ए 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट में क्या होगा, y1 एंड y2 दैट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दैट इज द y1 is our first function, y2 is our second function and y1 dash is the derivative of first function and y2 dash is the derivative of second function. ये हुई हमारी Wronskian ऑफ टू फंक्शन। अगर हमारी फंक्शन दो से ज्यादा है उस केस में भी हम डिफाइन कर सकते हैं Wronskian। तो यहाँ पर हमने सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है, तो उस केस में हमें दो सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शन लिया है, दैट इज y1 एंड y2। सिमिलरली वी कैन डिफाइन फॉर 3 फंक्शन, 4 फंक्शन एंड इन जनरल वी कैन डिफाइन इन नंबर ऑफ फंक्शन। तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन आवर Wronskian। अगर सपोज करें कि हमने लिया हमने 3 फंक्शन लिया लाइक y1, y2 and y3, in that case the Wronskian of y1, y2 and y3 will be, it's a determinant of, or it's a 3 cross 3 determinant, and in that the first row will be y1, y2 and y3, the second row will be y1 dash, y2 dash, y3 dash, and the third row will be y1 double dash, y2 double dash and y3 double dash। तो उस केस में हमें 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट मिलेगी, यानी उस केस में जो हमारा y1, y2 और y3 होगा वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा अप टू सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शन कंसीडर किया है y1, y2, तो इट शुड बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक फंक्शन क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, right? So now I'm going to take one example and I'll show you how we can find the Wronskian. मैंने माना suppose y1 equal to sin x and y2 equal to cos x. This is some two function, यहाँ पर दो फंक्शन दी हुई like sin x and cos x, and x is some interval
like x is some interval belongs to y which is a subset of suppose set of real number, हमने माना। तो हम Wronskian कैसे निकाल लेंगे इन दोनों फंक्शन का? The Wronskian of y1, y2 will be, we know that the formula for this will be y1 y2, that is the first function, second function, and the derivative of first function and the derivative of second function. This is the Wronskian of two function which is our y1 and y2। तो यहाँ पर हमारी y1 क्या है sin x, y2 क्या है हमारी cos x, y1 डैश क्या होगा हमारा माइनस cos x एंड y2 डैश क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी y1 डैश हमारा होगा cos x एंड y2 डैश होगा हमारा माइनस sin x। In that case we are getting it's a minus sin square and minus cos square, so we can write -1, the value will be -1। so हमें यहाँ पर Wronskian का वैल्यू मिला जो कि मिला -1। तो इस तरह हम Wronskian निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन कंसीडर किया था, तो अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लिखा और हमने Wronskian निकाला। Okay, so now we are going to see some result which will be important when you try to understand when some solution of a differential equations are linearly independent or not। So this is one result, that is the result number 1। हमने यहाँ पर माना है दो सॉल्यूशन, that is two solution y1 and y2 of the homogeneous normalized differential equation। अभी हमने समझा था कि normalized का मीनिंग क्या होगा। normalized ऐसे differential equation को बोलेंगे जो भी differential equation होगा उसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोएफिशिएंट 1 होगी, ऐसे differential equation को हम बोलेंगे normalized differential equation। तो here we are assuming that second order homogeneous normalized differential equation। मैं इसे homogeneous क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में हमने इसे जीरो कंसीडर किया है, जीरो माना है। तो दिस इज आवर homogeneous normalized differential equation। So two solution y1 and y2 of the homogeneous normalized differential equation are linearly independent if and only if their Wronskian is not zero at some point। हमने कुछ माना है पॉइंट और इंटरवल है हमारा i। तो इस इंटरवल पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वहां पर x का कोई इंटरवल होगा। अगर हमारी Wronskian की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर अगर जीरो नहीं होगी उस केस में हम बोलेंगे ये जो दोनों सॉल्यूशन है y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो रहा है? दैट मींस वी कैन नॉट राइट वन सॉल्यूशन विद द मल्टीपल ऑफ और विद द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर हम एक सॉल्यूशन को स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर के सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख पाए ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो अगर हम चेक करना चाहें कि हमारी सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसके लिए हम Wronskian चेक कर सकते हैं। इफ द Wronskian will not zero at some point whatever the interval is given, then in that case we can say that set of solution will be linearly independent। यहाँ पर मैंने दो सॉल्यूशन लिया है क्योंकि हमारी जो corresponding homogeneous normalized differential equation का जो ऑर्डर है वो 2 है। अगर हम 3 सॉल्यूशन लेंगे लाइक y1, y2 एंड y3, उस केस में हमें थर्ड ऑर्डर का होमोजेनियस नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना होगा। अगर हम इन जनरल हम मानते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सपोज y1, y2 अप टू yn, इन दैट केस वी कैन टेक द nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर उसकी वैल्यू Wronskian वैल्यू अगर जीरो नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पर, इन दैट केस दैट सॉल्यूशन विल बी और दैट सेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इट्स आवर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो रहा है कि हम किसी एक सॉल्यूशन को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सपोज फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं y डबल डैश प्लस y। दिस इज ए homogeneous differential equation which is given in normalized form। So we know that this solution for this equation is nothing but the complementary function। तो यानी इसकी सॉल्यूशन क्या होगी? इसकी सॉल्यूशन जो होगी वो होगी हमारी c1 cos x प्लस c2 sin x। और अब अगर हम चेक करना चाहें यानी हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन है, यानी हमारी यहाँ पर y1 क्या है? y1 इज आवर cos x एंड y2 क्या है? हमारी sin x। यानी एक सॉल्यूशन हमारी cos x है एंड दूसरी सॉल्यूशन हमारी sin x है। हम कैसे बोल सकते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन? हमने यहाँ पर माना कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी सॉल्यूशन बनेगी वो c1 cos x प्लस c2 sin x। नाउ वी वांट टू चेक वेदर दिस टू सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट।
सो हम देख सकते हैं cos x और sin x दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये बता रही है कि इक्वेशन यानी cos x और sin x इसका सॉल्यूशन है। अब इसे हम चेक करना चाहेंगे कि whether this solutions is linearly independent or not. So for that we have to check the Wronskian of this y1 and y2। और अगर हम चेक करेंगे, हमने यहाँ पर y1 को cos माना है एंड y2 को sin माना है, so accordingly we can write cos x sin x and here minus sin x and here cos x। So what will be the value? Cos square x plus sin square x, here we are getting 1। हमें वैल्यू मिल रहा है Wronskian की वैल्यू 1 जो कि कभी 0 नहीं हो सकती। यानी ये पता चल रहा है यानी cos x एंड sin x सॉल्यूशन है क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और Wronskian से हमें पता चल रहा है since this value is not equal to 0, so with the help of this result we can say that these two solution like y1 and y2 are linearly independent। तो ये तो मैंने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया। इस तरह हम जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ले सकते हैं। उस केस में हमें n नंबर ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करना होगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द Wronskian एंड वी कैन चेक वेदर इट इज 0 और नॉट। याद रहे दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, यानी हमारी अगर फंक्शन अगर हमारी सॉल्यूशन जो है जो कि नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी उस केस में हमारा Wronskian नॉट इक्वल टू 0 होगा। या हम रिवर्स वे से भी बोल सकते हैं कि हमारी अगर Wronskian नॉट इक्वल टू 0 होगी, इन दैट केस आवर सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जो रिजल्ट रहा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए रहा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर रिजल्ट that is for the case of a linearly dependent। In that case we are assuming that again the same thing, हमने लिया है two solution y1 and y2 of the homogeneous normalized differential equation। again हम यहाँ पर assume कर रहे हैं this is our homogeneous normalized second order differential equation क्योंकि हमने दो solution माना है y1 and y2 and definitely there will be some interval that is x belong to some interval। so this solution that is y1 and y2 are linearly dependent if and only if the Wronskian is equal to 0 for all x belongs to the interval I। यानी अगर हमारी Wronskian की वैल्यू अगर 0 आ रही है for every value of x, then in that case we can say that our solution like y1 and y2 will be linearly dependent। यानी हम बोल सकते हैं कि एक solution को हम स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। और इसका रिजल्ट हम कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द Wronskian। अगर Wronskian हमारी 0 हो रही है तब इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारी सॉल्यूशन जो होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट है, या लीनियरली डिपेंडेंट होगी उस केस में हमारी Wronskian 0 होगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन इंपॉर्टेंट रिमार्क। ये जो हमने रिजल्ट नंबर 2 जो डिस्कस किया है, ये जो रिजल्ट हमने जो मान रहे हैं यहाँ पर y1 एंड y2, याद रहे ये y1 एंड y2 किसी होमोजेनियस नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर इसकी Wronskian 0 आ रही है तब इसे हम बोल पा रहे हैं कि हमारी सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है या होगी। बट दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री फंक्शन। हम ऐसा नहीं कि कोई भी दो फंक्शन ले ले और हम उसकी Wronskian चेक करें, अगर उसकी 0 आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि that two function will be linearly dependent। so this is not true for any function। याद रहे कि जो भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं y1 and y2, these are the some solution of a differential equation, that is the normalized differential equation, then we can say that this result will hold। so remember that this result is not hold or not true for any arbitrary function। यानी इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ये वन साइडेड ट्रू होगी। जब लीनियरली डिपेंडेंट होगी तब हमारी Wronskian 0 होगी। बट अगर Wronskian 0 होगी तो इट नीड नॉट बी गारंटी दैट टू फंक्शन विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। यानी हम फंक्शन किसी आर्बिट्री फंक्शन के लिए नहीं बोल रहे। आर्बिट्री फंक्शन का मीनिंग है हम कोई भी आर्बिट्री फंक्शन ले रहे हैं जो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो उस केस में हम नहीं बोल सकते कि उसकी Wronskian अगर 0 हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी। तो याद रहे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर व्हेन y1 एंड y2 आर सम सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री फंक्शन जो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा।
It is one-sided true, but not in a reverse way. Okay, now again I am going to discuss one more result, that is the result 3. तो ये क्या बता रही है? ये हमें बताएगी कोई अगर इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसमें हमने यहाँ पर एज्यूम किया सेकेंड ऑर्डर लीनियर नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन होमोजेनियस फॉर्म। अगर हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं, लेट y1 एंड y2 are the any pair of linearly independent solution of this homogeneous normalized differential equation, then in that case we can write this y1 and y2 we can put in the form of a c1 y1x plus c2 y2, यानी हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं and that linear combination is nothing but our general solution। यानी अगर हमारी सॉल्यूशन y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो वी कैन राइट that independent solution in the form of a general solution. So then in that case the general solution we can write in the form of a c1 y1x plus c2 y2x where c1 and c2 are constant। यहाँ पर मैंने दो सॉल्यूशन लिया है। सपोज करें कि हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट आवर जनरल सॉल्यूशन। So in that case we can write c1 y1x plus c2 y2x and up to cn y(n)x। अगर हम एज्यूम करेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, तो ये रिजल्ट था हमने जो डिस्कस किया इस सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने लिया है, क्योंकि जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम पढ़ेंगे वो ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारी नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगी। तो y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, दिस इज आवर नॉर्मलाइज्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहे जो हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द नॉर्मलाइज्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दैट केस इफ px qx and rx are continuous on some open interval, and here we are assuming that some open interval, suppose I, हमने माना open interval I, and y1 and y2 are the linearly independent solution of this homogeneous normalized differential equation। क्या जैसे कि हमारा बना y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, then in that case the particular integral will be yp equal to it's a y1u plus y2v। हमने यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल ये माना and after derivation we will get u is equal to हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 rx divided by Wronskian of y1 and y2 dx and the value of v will be it's a integration of y1 rx divided by Wronskian of y1 y2 into dx। तो व्हाट इज rx? rx हमारी जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है, यानी जो हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, दिस इज द इफेक्टिव मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें पहले कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि नॉर्मलाइज्ड सेकेंड ऑर्डर की जो बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे हम दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में दी हुई रहेगी तो हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं और वहां से हम आसानी से y1 and y2 आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड वी कैन चेक वेदर दिस टू सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। हम कैसे चेक करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द Wronskian, एंड द Wronskian if it is not 0 then in that case we can say that this two solution will be linearly independent। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है दिस इज yp इक्वल टू y1u प्लस y2v, एंड व्हाट इज u and v? दिस u इज इक्वल टू आवर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 r of x is the right hand side function divided by Wronskian, and v will be our integration of y1 r of x, it's a w of that is the Wronskian of y1 and y2 dx। y1 and y2 क्या है? y1 and y2 are the linearly independent solution। याद रहे जिस ऑर्डर में हम y1 and y2 मानेंगे accordingly we can write u and v, and after replacing this value we will get our particular integral। यहाँ से हमें particular integral मिलेगा और कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। सो वंस वी कंबाइन द कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन।
याद रहे ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहाँ पर हम जो एज्यूम कर रहे हैं, दिस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज एप्लीकेबल फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड आल्सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। यहाँ पर कुछ कंडीशन क्या था, कुछ एजम्पशन क्या था, px qx एंड rx जो कि हमारी कोएफिशिएंट ऑफ y डैश है, y है और राइट हैंड साइड फंक्शन है, these all are continuous on and some open interval and we assume that interval is our I। और इससे रिलेटेड हमें क्या मिलेगा, सिंस दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी जो होमोजीनियस फॉर्म होगी वहां से हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे सो दैट वी कैन राइट आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। So this is the process to find the particular integral of our second order normalized differential equation and we know very well how we can find the complementary function. So after that we can write the general solution। हम general solution क्या लिख सकते हैं, y equal to c1 y1 plus c2 y2। this c1 y1 and c2 y2 this is our complementary function, that is yc, क्योंकि हमें पता है y1 and y2 are linearly independent solution and if this y1 and y2 if it is linearly independent then we can write this one as a complementary function like c1 times of y1 plus c2 times of y2 and yp का जो फॉर्मूला है, yp का फॉर्मूला ये हमारा ये है। So that's why this variation of parameter is a effective method for finding the particular integral। हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चीज याद नहीं रखना होगा कि राइट हैंड साइड में किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, बट समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन। बट ये किसी भी फॉर्म फंक्शन में कोई भी हमारा फंक्शन हो, हम आसानी से इस फॉर्म में लिखकर हम आसानी से यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो सम एग्जांपल and I'll show you how we can find the solution using variation of parameter। Okay, so now we are going to discuss one example and with the help of that example we can solve this using variation of parameter। हम देख सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है, y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ x। तो दिस इक्वेशन इज आवर सेकेंड ऑर्डर नॉर्मलाइज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसे नॉर्मलाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, that means this is our normalized differential equation। so we can solve this equation using variation of parameter। हम देख सकते हैं कि हमारी जो फंक्शन है राइट हैंड साइड में यहाँ पर 10 ऑफ ax है, यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम डी ऑपरेटर के हेल्प से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सोल्यूशन एक्सेप्ट द जनरल मेथड। हम इसे जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन अप्लाई हियर द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन, हम इसे मान रहे हैं कि दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ आवर सेकेंड ऑर्डर नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें p क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, दैट इज px क्या मिलेगी हमें, px हमें मिलेगी 0 बिकॉज देयर इज नो टर्म ऑफ y डैश। और px क्या है, px इज द कोएफिशिएंट ऑफ y डैश। qx क्या होगा, जो हमने नोटेशन यूज किया उस हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, qx क्या होगी हमारे, qx होगी हमारी a स्क्वायर, that is the coefficient of y and r of x will be our 10 of ax। now we want to find first the complementary function। हम complementary function मान निकालेंगे पहले। since this problem is given the problem of a second order differential equation with constant coefficient, यानी इसके हम homogeneous differential equation consider करके we can find our complementary function। तो हमारी auxiliary equation क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी हमारी m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट द ऑक्सिलरी रूट दैट विल बी m इक्वल टू द प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर, दैट वैल्यू विल बी इट्स अ प्लस माइनस ai, यानी जो हमारी ऑक्सिलरी रूट आ रही है वो कॉम्प्लेक्स रूट आ रही है। तो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, दैट वी कैन राइट c1 cos ax and c2 sin ax। So we can write yc equal to it's a c1 cos ax plus c2 sin ax। So now accordingly we have to assume y1 and y2। So here we are assuming that हम मान रहे y1 क्या है हमारी cos ax है and y2 क्या है हमारी sin ax है। आप चाहो तो y1 को sin मान लो और y2 को cos मान लो, there will be no effect on our final answer। तो हमने माना y1 equal to cos ax and y2 equal to sin ax। Now we want to check these two solutions are linearly independent or not।
and if it is linearly independent then we can write as a combination of c1 cos x plus c2 sin x, और ये जो बनेगी हमारी, जो कि हमारी सॉल्यूशन होगी corresponding normalized homogeneous differential equation की, जो कि हमारी complementary function होगी. So now we want to check or we want to calculate the Wronskian of y1 comma y2, and if that value it is not equal to 0, then we can say that these two solutions, that is cos ax and sin x, will be our linearly independent solution. So we want to check the Wronskian of this, like cos ax sin x, हमारी फर्स्ट फंक्शन हमने माना है, फर्स्ट सोल्यूशन हमने माना है cos ax and सेकंड सोल्यूशन हमने माना sin x. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ cos x, हमें क्या मिलेगा a sin x, that is minus a sin x, and the derivative of sin x, that will be our a cos x. So this is a 2 cross 2 determinant. Now after calculating the value we are getting, हमें क्या मिलेगा a cos square x plus a sin square x, and that value will be a, and which is not equal to 0. यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि y1 and y2 are the linearly independent solution. So y1 and y2 are linearly independent solution. और अगर हमारी solution linearly independent होगी, in that case we can write c1 cos x plus c2 sin x, that will be our general solution for the case of homogeneous normalized differential equation. हम लिख सकते हैं यहाँ पर y1 and y2 are linearly independent solution. तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज yc, दैट इज y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट, हमें क्या निकालना होगा, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, yp इक्वल टू, इट्स अ y1 दैट इज फर्स्ट फंक्शन इनटू u प्लस y2 इक्वल टू b. याद रहिए जो फॉर्मूला हमने लिखा है, दिस फॉर्मूला इज फॉर आवर सेकेंड ऑर्डर नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. And what is u and b, where u क्या थी हमारी, u is equal to, it's a minus of y2 r of x divided by the Wronskian of y1 comma y2 over dx, and v क्या थी हमारी, और v क्या होगी हमारी, y1 r of x divided by Wronskian of y1 comma y2. So now we want to calculate the value of u and b, ताकि हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख पाए. याद रहिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने लिखा है when for the second order differential equation, and we are assuming that y1 and y2 are independent solution. अगर हमारी थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, so accordingly we have to change the formula and we have to calculate the particular integral. in that case हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पर तीन फॉर्म में मानना होगा, y1u plus y2b and plus y3 into something. तो ये जो हमारी आज पर आवर गेट सिलेबस, वी वांट टू लर्न ओनली द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग आवर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मूला है. तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u. u की वैल्यू क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 r of x एंड द Wronskian ऑफ y1 y2. हमारी यहाँ पर y2 क्या है, हमने y1 को माना है cos x एंड y2 को हमने माना है sin x. अगर आप y1 को sin x मानो और y2 को cos x मानो, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट, बट हमें जो लास्ट में हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा वो सेम ही होगा. तो माइनस y2 क्या है हमारा, हमने माना y2 हमारी sin ax है, r of x जो कि राइट हैंड साइड फंक्शन है यहाँ पर, जो कि नॉन जीरो है, so that's why we are calculating the particular integral. यहाँ पर r of x क्या है, 10ax, r of x क्या है, 10 of ax, and divided by Wronskian is our, we calculated the Wronskian value is a. So now we want to calculate the value of this integration. So minus of, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं ये जो हमारी sin x है और ये 10x को हम लिख सकते हैं sin x by cos x. So now we can write sin square ax divided by cos ax, and we can write this 1 by a outer term. So now this sin a square हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 by a, और sin square x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos square x. We want to calculate the value of this integration divided by cos of x.
dx. So minus of, we can write minus of 1 by a integration of what we can write 1 by cos ax, that is sec ax, minus this cos ax divided by cos square x divided by cos x, we are getting, हमें क्या मिलेगा, cos ax मिलेगा and dx. Now we can calculate the value of this one. So हम क्या लिख सकते हैं, minus 1 by a, the integration of sec ax, that will be our log of sec ax plus tan ax. हम जानते हैं the integration of sec ax will be our log of sec ax plus tan ax, and there will be term divided by a, so we can write 1 by a, because here angle is our ax, minus the integration of cos of ax. इसे हम क्या लिख सकते हैं, the integration of cos of x, it will be our sin of x divided by a. तो हमारी क्या बनी, u इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे, हम चाहे तो इसे 1 by a को, इन दोनों 1 by a को हम बाहर लिख सकते हैं. सो हम इसे फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट्स 1 by a स्क्वायर माइनस 1 by a स्क्वायर. तो ये हमारी बनी u की वैल्यू. सिमिलरली हमें v की वैल्यू निकालनी होगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. सो v क्या होगी, v की जो साइन होगी, याद रहे जो पहला हमने निकाला u की जो साइन थी माइनस साइन थी, एंड जो हमारी v होगी, v की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ y1 r of x divided by the Wronskian of y1 y2 over dx. तो हमने y1 क्या माना, हमने y1 माना था cos ax, rx क्या है हमारी tan of ax, एंड Wronskian की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, वो थी हमारी a over dx. So what we can write 1 by a. Now this cos ax, and हम tan x को क्या लिख सकते हैं, sin ax divided by cos x, and we are getting only sin ax, and after integration of sin x, that will be our minus, यहाँ पर हमें एक साइन मिलेगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, cos ax divided by a. तो हमें v की वैल्यू क्या मिल रही है, हमारी फाइनल वैल्यू 1 by a स्क्वायर, इट्स अ cos of ax, इट्स अ cos of ax. यानी हमारी u और v की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं. So now we want to write the particular integral. So particular integral क्या होगा हमारा, yp इक्वल टू, इट्स y1 इंटू u प्लस y2 इंटू v. तो हमारी y1 क्या था एंड y2 क्या था, y1 एंड y2 दीज आर द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. हमने माना था y1 को क्या माना था, cos ax. u हमने क्या निकाला, u हमने जो निकाला वो था माइनस 1 by a स्क्वायर log sec x प्लस tan x माइनस sin ax. तो हम लिख रहे हैं माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं log sec x, सॉरी sec ax प्लस tan ax माइनस sin ax. ये हमारी वैल्यू किसकी हुई, ये अभी हमने एक क्वांटिटी कैलकुलेट किया, दैट इज आवर y1 इंटू यू, प्लस हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा y2 इंटू वी. तो y2 क्या थी हमारी, y2 हमने माना था sin ax इंटू हमारी v क्या निकली है यहाँ पर, माइनस 1 by a स्क्वायर. सो वी कैन राइट द माइनस साइन एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू cos ऑफ ax. नाउ हम देख सकते हैं कि जो हम yp निकाल रहे हैं y1u प्लस y2 भी, फाइनल कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, हम देख सकते हैं cos ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस tan ax, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस एंड माइनस दैट इज प्लस sin ax इंटू cos ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और हमें एक टर्म मिला sin ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू cos ऑफ ax. हमें ये एक टर्म मिला, यानी दैट टू टर्म विल कैंसिल. तो हमें क्या मिलेगा, yp इक्वल टू, the value of yp will be, we can write minus of 1 by a square, the cos of ax, it's a log of sec ax plus tan ax. So this is the particular integral. तो हमारी जनरल सोल्यूशन क्या होगी, we can write the general solution y is equal to, it's a yc plus yp. तो yc क्या है हमारा,
हमने yc ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, तो yc इज आवर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos x प्लस c2 sin x। एंड हमने yp क्या निकाला, yp की जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स, यानी इन दोनों को जो कंबाइन करेंगे दैट विल बी आवर जनरल सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहे इस इक्वेशन को आइदर हम जनरल मेथड से कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज बेसिकली ए इफेक्टिव मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर एनी काइंड ऑफ ए फंक्शन। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से हम कैसे आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो आपको गेट के क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं हो सकता या मेंशन हो भी सकता है कि आप सॉल्यूशन निकालिए, बट हम देख सकते हैं कि अगर हमारी राइट हैंड साइड फंक्शन ऐसी फंक्शन है जो कि फिट नहीं हो पा रही है, जो हमने डी ऑपरेटर में पढ़ा है, तो उस केस में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा सकते हैं। या फिर ऐसे भी है जो फंक्शन ऑफ जो कि फिट हो रही है लाइक एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल हो या साइन कोसाइन हो, उस केस में भी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी हमारी दो सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होगी उसके हेल्प से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे एंड वी कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने सीखा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कितनी आसानी से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कितनी आसानी से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने पढ़ा और इससे हमने जाना कि कैसे हम सेकेंड ऑर्डर, कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई रहेगी तो कितनी आसानी से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इस लेक्चर में हमने रॉन्स्कियन के बारे में भी समझा और लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में भी समझा। इस लेक्चर में हमने रॉन्स्कियन के बारे में भी समझा एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज इन शॉर्ट वी डिनोट एल आई, एंड लीनियरली डिपेंडेंट यानी कब हमारी सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी और कब हमारी सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट होगी, हमने इस लेक्चर में ये भी समझा। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज पसंद आई होगी और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमने इसी के साथ सारे टॉपिक को कवर कर लिया जो कि हमने डे 1 और लेक्चर 1 में हमने देखा था फॉर दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जो कि गेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं, लाइक आवर ऑर्डर डिग्री, लिनियरिटी, नॉन लिनियरिटी, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉची-ऑयलर इक्वेशन एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये सारी टॉपिक हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये जो हमारी टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस टॉपिक द डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल गेट के क्वेश्चन में बहुत ही मॉडरेट होती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, थोड़ा सा भी आसानी से पढ़ो, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। और हर साल गेट के पेपर में 2 से 4 नंबर के बीच में पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसे स्कोर कर पाओगे। तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल रहती है वो बहुत ही मॉडरेट या बहुत ही आसान रहती है, तो आप इसे आसानी से कुछ टेक्निक की मदद से आप स्कोर कर पाओगे। तो याद रहे ये स्कोर जो होगी आपके गेट में सिलेक्शन दिला सकती है। अगर आप इस इजी टॉपिक और इस मॉडरेट टॉपिक पर अगर आप गलती कर पाएंगे या गलती कर दे रहे हैं तो आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस खो देंगे। तो ध्यान रहे आपको बहुत ही ये मॉडरेट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आपको केयरफुली केवल मेथड जानना होगा कैसे किया जाता है। अगर आप लास्ट कुछ ईयर के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से स्कोर करना, और वही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। क्योंकि गेट में आपको पता है एक एक नंबर, इवन पॉइंट नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप किसी प्रकार का डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी क्वेरी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम, हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि आपकी किसी भी तरीक़ा से सहायता करें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। Okay, so till then, take care and bye to all. So thank you very much and thanks for your time.